So, okay, so let's start today's class. So, in today's class, first I'm going to say how to solve problems and what is the major, let's say, challenges you are facing when you are solving the question. So, many students who are facing the problem and they are solving the question, the bigger challenge is when they are reading the question, they cannot identify what they are asking. So, if the question is bigger question, let's say a lot of language is given, right? And you have to, let's say, extract some information from the question and then you have to apply some concept and then you have to solve it. So many student faces problem. सही बात है भाई, है ना? कई लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस में या फिर जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको इनमें प्रॉब्लम आती है. Yes. So what is the, let's say, what is the best method that you can do it, right? You can solve it. So the best method is first break the question into parts, right? The mean is just read slowly and thoroughly. Just try to look कि क्या लिखा हुआ है and make it rough diagram. You can remember what I've done in last, let's say, class, doubt class, when I was reading a let's say paragraph, then how I am going to break that question, right? So what you have to do is, let's say, if we are going to take some example here, just one second. So let's think about this question. Question number 68 is like I have asked you to solve, you know, and I have solved this question earlier. So it's a very lengthy question, right? You know, whether I have already solved this question, I'm just solving this question that what I'm going to do if I'm at your place. So I will write slowly like what is given over here. So work function WA for photoelectric material A is given as 2 electron volt, right? So I know, okay, there is some material A or metal, let's say. So if the light is incidenting, the work function, that is W, or you can say phi, that is given as 2 electron volt. I have to mention, so I'm writing WA or phi. Now, WB for the another photo material, that is 4 electron volt. So I'm going to say, okay, there is another, let's say, material, let's say B, and this is the diagram which I am going to draw by myself, right? Slowly what, see, initially when you are solving, when you are understanding the concept and applying the concept, you don't need to be hurry. Like कई लोग कहते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड में ही क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं. When you are learning the concept, you need to be accurate and you need to be slow. You need to understand how you are going to solve it. Once you know the application, अगर मान लो ये क्वेश्चन मैंने एक बार कर लिया है, now there is some idea in my mind कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है या इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होने हैं, and later on if the same type of question will come, then I know कि मुझे कौन सी बातें eliminate करनी है, कौन सी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, and I can directly write the expression, right? तो ये एक रिवीजन का पार्ट है. सॉल्विंग क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन एंड you need to be very slow. I have told you, slow is smooth and smooth is fast. Okay, जितना स्लो हो सकता है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ टाइमर वाइमर लगा के सॉल्व नहीं करना है शुरुआत में. अंडरस्टूड? ये जो फाउंडेशन, बिल्डर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो हम अभी करा रहे हैं, ये तुम्हारे फाउंडेशन एप्लीकेशंस हैं. तो ये एक्सरसाइज में आपको टाइमर नहीं लगाना है. टाइमर कब लगाना है? जब आप विंडोज टू जेई मेन, एडवांस या फिर और आगे जा रहे हो, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन और एडवांस, उसमें आप टाइमर लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, ये एप्लीकेशन मैं पहले लर्न कर चुका हूँ, राइट? अंडरस्टैंड? Okay, Nandita, you can check my let's say channel, or you can see the playlist I have uploaded. Okay. So let's see. So this is the question, right? Now another photo material is given 4 electron volt. If the photon of energy EA strike with the surface of A and ejected photoelectron have minimum de Broglie wavelength lambda A. Minimum de Broglie wavelength का मतलब क्या होगा?
let's say we can say the minimum de Broglie wavelength lambda is nothing but h by p, right? So lambda is minimum, that is this is constant, so p is going to be maximum. If p is going to be constant maximum, then what is the relation? We can remember kinetic energy is nothing but p square by 2m, है ना? p square मतलब mb का whole square, तो m square b square divided by 2m लिखेंगे, right? So anyway half mb square आ जाएगा. तो kinetic energy, तो अगर p square maximum होगा तो mass तो constant ही होगा part मतलब, right, इलेक्ट्रॉन का, तो kinetic energy क्या हो जाएगी? maximum. So the relation which it is saying is that have minimum de Broglie wavelength means maximum kinetic energy. अब आपको पता है kinetic energy maximum क्या बनेगी, right? ठीक है. Anyway, and photons of EV strikes the surface of B and the ejected photoelectron have minimum de Broglie wavelength lambda b. So what they are saying is कि भाई ये जब ये इस पे EA एनर्जी से कोई फोटोन गिर रहा था, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकला, राइट? जो भी निकलेगा आफ्टर उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो क्या होगा? लैम्डा ए मिनिमम होगा, राइट? सिमिलरली इफ यू हैव गिवन द एनर्जी ईवी, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज लैम्डा बी की करस्पॉन्डिंग, राइट? दिस इज गोइंग टू बी, and this kinetic energy I think they have given TATB something, nahi, okay. Now they have given EB and EA relation, and they have given lambda b and lambda a relation. So that's it. So we can write EA is nothing but WA, let's say, plus kinetic energy max, and EB is nothing but WB plus kinetic energy max of B. Let's say this is for B and this is for A, right? Now you know the relation over here. You know the relation over here, lambda A or lambda B आपको पता है, right? Lambda A divided by lambda B is nothing but, so lambda B, okay, so if I am going to bring lambda B over here, then it is going to be 1 by 2, ठीक है? So this is given 1 by 2. So this is a one relation which you know. Now over here they have given EB and EA relation also. EB कितना है? That is EA 0 plus 0.5 electron volt. And we will write the value of, this is 2 electron volt and this is 4 electron volt. So EA is nothing but 2 plus kinetic energy of A, and this is EA plus 0.5 is nothing but 4 plus kinetic energy of B, right? So now you can get one relation between KE and KB, right? Whatever, let's say EA की value यहाँ डाल देते हैं यहाँ पे, right? So we are going to put over here, then this is 2.5 plus kinetic energy A is nothing but 4 plus kinetic energy B, or you can say kinetic energy A minus kinetic energy B is nothing but 1.5 electron. ठीक है? Now so now we know that what is lambda over here. So from lambda we can, let's say, relate kinetic energy. तो lambda वाली value हमें क्या बता दी, right? What we know, that is h by root 2 mkea, right? Divided by h by root 2 mkeb is nothing but 1 by 2. So we are going to, let's say, cut everything. तो ये ऊपर चला जाएगा keb. So this is keb divided by kea. इसका रूट, ये रूट में है तो you have to take the square, so this is 1 by 4. Now you can write the value that kea is nothing but 4 kb, है ना? तो kea की जगह लिख दिया 4 kinetic energy B minus kinetic energy B is nothing but 1.5 electron volt. So now you know kinetic energy B is nothing but 0.5 electron volt. Kinetic energy A, then it is going to be 2 electron volt, right?
यू नो देन EA भी पता चल जाएगा आपको, ये 2 + 2 कितना हो गया 4, और यहाँ 4 + 0.5 तो 4.5 बस। तो अब इन्होंने पूछा है VA and BB are respectively stopping potential, then which of the following is not correct? VA किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, काइनेटिक एनर्जी के, कितना आया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। BB किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, अनदर काइनेटिक एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस। तो BA 2 वोल्ट हो गया, BB 0.5 वोल्ट हो गया, EA 4.5 वोल्ट हो गया। सॉरी यहाँ पे दोनों EA दे रखे हैं, ओके। सो EA 4 वोल्ट हो गया, EB is 4.5, so this is going to be wrong. Now Gauransh, I have given you the link so you can check the, वो लिंक पे जाके आप देख लो वो कौन सा चैनल है, राइट, है ना। So what we have done is we have broken this concept, this question into parts, made a diagram, like है ना क्या कहना चाह रहे हैं, है ना क्या गिवन है। Then we thought okay let's write, जो भी आपको समझ में आए, जो भी फंक्शन आपको समझ में आया आप पहले लिख लो, है ना, इक्वेशन लिख लो, and then you just going to use that information जो भी आपको दे रखा है, and then you have to just think, एक पजल टाइप का है कि आपको वो हिडन लेट्स से पीस पता है जिसको आप फिट करोगे तो आपका पूरा पिक्चर बन जाएगा, राइट। दैट हिडन पीस इज ओवर हियर एंड नाउ यू हैव टू चेक कि ये कैसे मैं फिट करूंगा इसमें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सॉल्विंग all those problems are also going to enhance your analytical skill which you are going to be very useful in later on. जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको you can identify the problems, like you know what is asked in the question, what is given and how you are going to utilize it, right? So it's a very important exercise. Clear है भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। Anyway, this is not the only one example. Whenever I am solving the question, I make sure that I am following all those, let's say, steps. चले आगे, ओके। तो अभी मैंने आपको बोला था कि हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली वाले आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। So let's quickly take the doubts from 50 to 56. Any doubt? 50 to 56. $55, okay. 54, 54, 53. Okay, let's see. एक मिनट, just 1 second. Yes, Bhavesh. हेलो। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप डाउट लेक्चर में ओनली डाउट्स लेते हो कि कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हो सर? ये भी टाइम है ये सब पूछने का? क्या हुआ सर? ये टाइम अभी है ये सब पूछने का? अभी क्या पूछा मैंने आपसे? डाउट सर 50 to 50। ओके, सॉरी सर। कॉमन सेंस कहाँ है भाई आप लोगों का? है इधर कुछ? डाउट क्लास में क्या, डाउट क्लास का मतलब ही यही है कि वी आर गोइंग टू टेक ऑल द डाउट्स। तो कल बताया भी था कि आपके डाउट्स लेंगे। एनीवे, व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग आई एम सॉल्विंग हियर। मैं डिस्कशन के टाइम पे डाउट ही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। आफ्टर ऑल कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट? कोई मुझसे पूछ रहा है मैं सुबह सुबह मेरा छूट गया या नहीं। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको पहले सोचो अपने दिमाग में कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। दैट मेक्स सेंस और नॉट? Okay, so let's say question number 52. If E1, E2, E3 are kinetic energy of electron, alpha particle and protons having same de Broglie wavelength, then so can we write the lambda, let's say, of electron is equals to lambda of proton is equals to lambda of alpha particle. Lambda is nothing but h upon root 2 me kinetic energy. We have to find the relation over here. This is h upon
root 2 mass of proton kinetic energy, right? And this is h upon root 2 mass of alpha particle kinetic energy. Yes, you have to find the relation over here. ठीक है, इसका रिलेशन निकालना है. एनीवे h को तो हम हटा सकते हैं. एनीवे जस्ट थिंक, जिसका मास कम, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तभी तो ये वैल्यू है ना कांस्टेंट आएगी, है ना. दिस मल्टीपल शुड बी सेम. दैट्स इट. अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, यू विल गेट द आंसर. Okay, E1, E2, E3, right? So E1 is for electron, then E1 is going to be maximum, E2 and E3. Now, let's say question number 53. The radius of first Bohr orbit is x, then de Broglie wavelength in third orbit is near D. Okay, how we are going to use it? So कैसे solve करना है? ठीक है. So we have to solve just by using this. The 2 pi r is nothing but n lambda, right? This is the formula, but here r is Rn. Which orbit is we are talking about? Third Bohr orbit. So third orbit is nothing but 2 pi r naught n square yz, right? Equals to n lambda. Now you can put the value of n over here, and z kitna hai ye? Anyway, they have said ki, right, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में x है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में क्या हो जाएगी? r1 इज नथिंग बट r नॉट n स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय z, है ना. तो r नॉट बाय z इज गिवन एज x. ये जो डिस्टेंस है ये x दे रखी है, तो जस्ट पुट द r नॉट बाय z ओवर हियर. सो 2 pi x, n स्क्वायर इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर 9, व्हिच इज नथिंग बट 3 lambda. So lambda is going to be 6 pi x. Again मैं समझा दे रहा हूँ. We have applied this 2 pi r n equals to n lambda. What we can do is to answer of 52 is given as is C. तो बेटा हमने यहाँ मिस कर दिया ना, अल्फा इलेक्ट्रॉन और फिर अल्फा दे रखा है, राइट, है ना, इसलिए, है ना. ये E1 है ना, ये E2 है और ये E3 है, राइट. सो वी मिस इन दैट सेंस. ओके, बीच में इन्होंने अल्फा दे दिया. ओके, सो ओवर हियर यू कैन जस्ट चेक. ओके, सो कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे लिखना है, लैम्डा, है ना, h by under root 2m. Anyway, so over here 2 pi r n equals to n lambda. You just going to write rn is r naught n square by z, and then you will say r1 क्या है, तो बस r naught by z. r naught by z is given as x. Apply, solve. Question number 54. I think I have solved it. Somebody is getting some little bit, let's say, approximate answer 2.62 something or somewhere. So do not worry about it. I have already told you कि कुछ answers ऐसे होंगे जिनमें आपके मैच नहीं कर रहे होंगे. So you are going to find the relatively let's say correct answer. ठीक है. Question number 55. If the uncertainty delta x is in position along x-axis, then uncertainty in momentum is measured along. So this is delta x dot delta p. I think dot is going to be dot product. So x-axis ही होना चाहिए. I think मतलब, right? Same axis. Okay. है ना, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, वो इस सेंस में बोल रहा है. एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन टिल 56? अभी तो बताया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी डॉट है ना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो 90 हो जाता, तो फिर दिक्कत आती, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी राइट. आपका दोनों में एक्स एक्सिस होगा. 54 you just have to solve h. 54 में क्या करना है भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना है. डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, let's say delta x is greater than equals to h by 4 pi m delta v बस.
अब यहाँ m दे रखा है 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg। ठीक है, वेलोसिटी में एरर दे रखी है 0.1, ये क्लास में कराया आई थिंक। सो दैट इज 10 into 0.1 डिवाइड बाय 100, so that is going to be क्या हो गया 1 10 to the minus 2। बस यहाँ पुट कर दो 10 to the minus 2 0.2 सॉल्व। 56 आंसर इज 3। चेक द आंसर की, आई डोंट नो। क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। व्हेन अप्लाइड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ सो स्मॉलर, लेट्स से स्मॉलर पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक, दैट्स व्हाई यस अल्फा पार्टिकल। ओके, एनी क्वेश्चन टिल 60? तो 60 तक हमने डिस्कशन कर लिया, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब्जेक्टिव, जल्दी से करते हैं, देन वी स्टार्ट। फिफ्टी एट क्या डाउट है 58 में? लेट्स से the lambda naught is threshold wavelength of the metal of for photoelectron emission। threshold wavelength ये किसकी होगी? फोटोन की, राइट? if metal is exposed to a wavelength light of wavelength lambda, ठीक है, then the velocity of ejected electron will be, velocity इन्होंने पूछी है, तो can we calculate kinetic energy is nothing but hc by lambda minus hc by lambda naught। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना? इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, राइट? And then can we write this is half mv square, so we can write this hc, we will take a common, then this is going to be 1 by lambda minus 1 by lambda naught। now take the LCM, so let's say, so what we come to know is half mv square is nothing but hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught। so okay, v square is nothing but ये 2 इधर चला जाएगा तो 2hc by m, इसका एलसीएम ले लेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ये आ गया, इसका रूट हो गया। वेलोसिटी अब यू कैन चेक, 2h/m वाला पार्ट आ रहा है आपको, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा आ रहा है, तो क्या बचा? c बाई लैम्डा लैम्डा नॉट, दैट इज गोइंग टू बी k, बस। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन टिल 60? भाई 60 तक डन, राइट? नो डाउट, राइट? एप्लीकेशन आ गए मतलब इन सब कॉन्सेप्ट्स के। आई टेक ए पोल इन द एंड कि भाई कितने लोगों को ये इसमें कॉन्फिडेंस आ गया भाई जितना पढ़ाया गया है। तो हम यहाँ कर चुके हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस कर चुके हैं, बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, इसमें कोई डाउट्स? 32 35, लेट्स से फर्स्ट 32 35, क्वेश्चन नंबर 30 itself, ओके। 35 36 34 सही है, एक 31 32 32 सब तो पूछ लेता है यार तुम लोग। चलो फिर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और क्या। The photoelectric effect consists of emission of electron from the surface of metal when a metal is irradiated with light, a photon with minimum energy। This minimum energy का मतलब क्या है? That is going to be work function, right? Is necessary to eject an electron from barium। ये threshold energy हो गई, या फिर ये it is equals to work function। What is the frequency of radiation corresponding to this value? तो इस energy के बराबर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दैट इज h nu। कैन यू सॉल्व इट? phi equals to h nu। will the blue light with wavelength 450 nanometer will be, तो lambda निकाल लो इससे फिर, and just check, right? if the lambda is going to be more, then energy will be less। अगर ये lambda value 450 is more than let's say the wavelength which you are getting over here, तो इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो फिर ये इट विल नॉट बी एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? 50 जिसने 30 जिसने पूछा है,
ओके अभिलाष, बट ओके एनीवन। देवांश, समझ में आया क्या बोल रहा मैंने? देवांशु, ये एनर्जी है, इससे आप निकाल लो एच सी बाई लेमडा से लेमडा और न्यू एच न्यू से न्यू। फ्रीक्वेंसी पहला हो गया, लेमडा आ गया, जस्ट कोरिलेट। अगर आपका आपका लेमडा जो भी आ रहा है वो कम आता है, मतलब ये 450 ज्यादा है तो लेमडा कम हो गया, लेमडा कम हो गया, राइट। सो देन क्या हुआ कि आपको ये बताना है कि ये 450 नैनोमीटर की लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाई या नहीं। तो लेमडा ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड एनर्जी कम है, इस एनर्जी से ये एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो और कम एनर्जी क्या होगी, दैट विल नॉट बी एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। और उल्टा केस आता है, अगर मान लो 450 कम आता है, जो भी आपकी लेमडा कैलकुलेट निकल के आती है, इसका मतलब क्या है, लेमडा कम है तो इससे इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, सो दैट्स व्हाई इट विल बी एबल टू, है ना, इरेडिएट द इलेक्ट्रॉन। एनीवे 30 हो गया। 31, find the threshold wavelength of photoelectric effect corresponding to copper surface, sodium surface and cesium surface। वर्क फंक्शन दे रखा है, so that's it, you know energy value 5 वैल्यू दे रखा है, एच सी बाई लैम्डा फॉर्मूला लगाना है और you can set 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा, बस ये वैल्यू इधर पुट करो, सॉल्व इट, ठीक है। 32, energy required to stop the ejection of electron from copper plate is this। energy required to stop the ejection of electron from copper plate, this is stopping potential, which is going to be equals to kinetic energy max when the radiation of lambda this strike the plate, calculate the work done। तो ये lambda से आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी स्ट्राइक हो रही है। E total is nothing but hc by lambda, है ना। आपको पता है कि भाई ये जो लैम्डा है ये 235.7 ऐसे नैनोमीटर दे रखा है, राइट, 253.7 सॉरी 253, राइट। सो इसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल लो, जो एनर्जी इंसिडेंट होगी, राइट, एच सी बाई लैम्डा लिख के। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी हो सकती है, दैट इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैन यू फाइंड व्हाट इज द वर्क फंक्शन, दैट्स इट, E इक्वल्स टू psi plus kinetic energy। So you will be able to get E, you will be able to get kinetic energy, just find psi over here, sorry phi over here। So 32 हो गया। 33, calculate the threshold and frequency of metal if winding energy is this। So winding energy is given in kilojoule per mole, can you convert into electron volt, 180.69 divided by 96, right, है ना। 1 kilojoule sorry 1 electron volt per atom is nothing but 96 kilojoule per mole, right, remember this conversion, ठीक है। तो जस्ट फाइंड द वैल्यू और उसके बाद आप एच सी वाई लेमडा लगा को 12,400 डिवाइड बाई लगा दो, उससे आ जाएगा, नहीं तो जस्ट सॉल्व इट प्रॉपर्ली, ठीक है। 30 तक भाई जिन लोगों ने पूछा था सबको समझ में आ गया, 33 तक डाउट क्या करना है? बोलो राजदीप। सर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं? अगर करना चाहो तो कर लो, दोनों तरह मेथड है ना। एक तो ये है कि फिर आप एच सी वाई लैम्डा पूरा लिखो, फिर एच की वैल्यू जूल में लिखो, है ना। क्योंकि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच भी नॉट है, तो फिर सर इधर ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में जूल में दिया था, इसलिए मैंने 4.5 into 1.6 कर दिया। ठीक है, वो भी ठीक है, पर वो थोड़ा लंबा हो सकता है ना सर? तुम कर लो ना, कैसे भी कैलकुलेशन करनी है वो आप कर लो। एच न्यू नॉट होता है, एच न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं बस। अगर आपको न्यू नॉट निकालनी, न्यू नॉट निकाल लो, लैम्डा नॉट निकालना है, लैम्डा नॉट निकाल लो। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, वर्क फंक्शन दे रखा है ना, वर्क फंक्शन दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट्स इट। वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एच न्यू नॉट, सॉल्व इट। ये वर्क फंक्शन आप चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, चाहे आप इसको जूल पर एटम में निकालो, है ना। या किलो जूल पर मोल दे रखा है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पर एटम। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकाल रहे हो तो आप ऐसे 10⁻³ जूल पर मोल लिख रहे हो, राइट। तो इसको पर एटम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, है ना। ये एक मोल के लिए है, तो एक एटम के लिए कितनी होगी, 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर, तो जूल में आ जाएगा आंसर। और आसान तरीका क्या है, इसमें 96 से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर आप 1.6 इंटू 10⁻19 कर लो तो भी जूल में आ जाएगा, वॉट एवर विच एवर वे यू फील लाइक सॉल्व। 34 में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन सीजियम बाय 400 नैनोमीटर लाइट। ये कह रहे हैं, ये वाली ये पूछ रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इन सीजियम बाय 400 नैनोमीटर लाइट। बस 400 नैनोमीटर लाइट गिर रही है, उसकी एनर्जी निकाल लेंगे, है ना। 12,400 वाला आसान, सबसे आसान तरीका है, जल्दी हो जाता है। 4,000, तो दिस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिर रही है अप्रोक्सीमेटली, right? When the potential difference is 2 volt is applied as a accelerating voltage, the critical wavelength of photoelectric effect in cesium is this. ये कह रहे हैं कि भाई क्रिटिकल और यू कैन से द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है hc बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट मैक्सिमम है तो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो दिस इज, दे आर सेइंग कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो ये होती है 660 नैनोमीटर, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 660 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी है, सो राइट 12,400 डिवाइड बाय 6,600 है, इसको 124 डिवाइड बाय 66 और अप्रोक्सीमेटली यू हैव टू सॉल्व, ये हो जाएगा 11 से अगर कट करेंगे तो 11.23 मान लो, 3 डिवाइड बाय 6, then you are going to solve, then this is 1.9 के आसपास, 1.9 something like that, right? So this is going to be work, let's say work function. तो जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकलेगी, 3.1 गिरा 1.9 है ना, रिक्वायर्ड है निकलने के लिए, तो 1.2 की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है। बट दे आर सेइंग, ये they are not saying with what kinetic energy it is emitting, they are saying what is the maximum minimum kinetic energy produced in cesium by light when potential difference 2 volt is applied as accelerating voltage। तो 2 वोल्ट से जब एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी 2 वोल्ट से बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो सकती है, 0 से लेके 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ सकती है, और इसको हम एक्सेलरेट करा रहे हैं बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिनिमम क्या हो जाएगी 1.2 से 3.2। So after acceleration the minimum is going to be 1.2 and maximum is 3.2 electron। समझ में आया भाई 34 जिसने पूछा था। Stationary helium ion emitted a photon corresponding to first line of Lyman series, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, 2 से 1, एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है 10.2 जेड स्क्वायर, हीलियम है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की वैल्यू 2, सो 10.2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 40.8। तो इतनी एनर्जी का ये फोटोन निकला, राइट। द फोटोन लिबरेटेड ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा है भाई, ये हीलियम से n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में गया, हीलियम प्लस आयन से, तो ये एक फोटोन निकला, कितनी एनर्जी का 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये कहाँ गिरा, हाइड्रोजन पे गिरा, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा 13.6 तो निकल जाएगी, एनर्जी चली जाएगी, है ना, इसको बाहर निकालने में, राइट। तो टोटल एनर्जी इज 40.8, दैट्स ए वर्क फंक्शन, और यू कैन से आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज 13.6। अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो यू कैन कैलकुलेट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.6, तो ये आ जाएगा कितना 237, है ना, 37.2 ये आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कैन वी कैलकुलेट हाफ mv स्क्वायर।
so that is nothing but half mv square. इलेक्ट्रॉन का मास पता है, जस्ट सॉल्व इट, है ना, ये इलेक्ट्रॉन बोल्ट में है, सो दैट्स इट. सॉरी, हाँ 27, ओके आई मिस्ड इट, 27 राइट, यस 27. ठीक है. मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज दिस. इसका मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स. तो इफ दैट मींस इज कि इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. ये कोई एटम, सिल्वर एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट. टू ओवरकम दिस अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है, इसका ये वर्क फंक्शन दे रखा है एक तरह से. सो दैट इज गिवन एज 7.52 into 10⁻⁹ जूल. सही मिल गया, सॉरी 5. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected from silver, let's say, which is being irradiated by ultraviolet light. तो इसके corresponding energy निकाल लो, ये पता है, kinetic energy निकल जाएगा. ठीक है, 36 तक और कोई डाउट? Anyone? चलो अब देखते हैं डुअल नेचर. बताओ भाई, 37 टू कितने हैं, 43, 37 to 43. Any doubt? Okay, 42, 43, 42. Okay, 38. Okay, any other? 42, 43, 38. ठीक है, let's see. Okay, 39. A moving electron has this joule of kinetic energy. Calculate its wavelength. तो निकाल लो, lambda equals to h by p. h by p is nothing but h by root 2 mke. क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यहाँ पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31, लैम्डा निकल जाएगा भाई. 38 जिसने पूछा था. 39. Calculate the de Broglie wavelength of electron accelerated through 100 volt. तो मैंने बताया था lambda is also for lambda electron, है ना, यहाँ पूछा गया इलेक्ट्रॉन. So lambda electron is also under root 150 by v. v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, डाल दो 100, तो ये आ जाएगा 1.5. और इसका एक और फॉर्मूला होता है 12.3 डिवाइड बाय रूट v, है ना. 150 का रूट हम लेंगे तो 12.3 के आसपास आएगा. तो बस 12.3 डिवाइड बाय रूट v 100 वोल्ट है, तो यू आर गोइंग टू राइट 100, सो दैट इज 12.3 डिवाइड बाय 10 और 1.23 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 40 हो गया, समझ में आ गया. 40, 39. ओके, लेट्स मूव. हाँ ना भाई, लिखते रहो करो, जिन लोगों के डाउट्स आ रहे हैं और उनको समझ में आ जा रहा है, देन से यस हमको आ गया समझ में. नाउ द proton is accelerated to 1/10 of velocity of light. Proton, right? So the velocity which is going to be, let's say, 3 into 10 to power 8 का 1/10 है ना, 1/10 of 3 into 10 to power 8. So that is 3 into 10 to power 7 meter per second. If the velocity can be measured with a precision, तो error कितना आ गया आपका, plus minus 1% का मतलब क्या है, the delta, let's say v is 1%, है ना. एरर क्या हो सकती है, या तो 1% की कमी हो सकती है, 1% की से ज्यादा हो सकती है. सो दैट्स इट. सो व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा इज 1 डिवाइड बाय 100 into v, है ना, 1%. सो देन इट इज गोइंग टू बी 3 into 10 to 5 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, ठीक है. what must be the uncertainty in position? तो डेल्टा x is nothing but is going to be h by 4 pi m delta v. Now you know delta v, मतलब what is the delta v, you know, m mass of proton, so just write 6.63 into 10 to the minus 34 divide by this is 12.56, this is for m is 1.67 into 10 to the minus 27 kg में लिखना है, into 3 into 10 to the 5. so just solve it, इसको solve कर लो, फिर इससे आंसर आ जाएगा, है ना. ये 42 समझ में आया. 42. Electron beam can undergo diffraction by crystals through what potential
should a beam of electron accelerated so that the wavelength becomes 1.54 angstrom? इसमें क्या है? इससे कोई लेना देना नहीं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। दे आर सेइंग कि भाई बताओ लैम्डा 1.54 एंगस्ट्रॉम है, बताओ v की वैल्यू क्या होगी, which is 12.3 divided by root v. Can we solve it? Root v is nothing but 12.3 divided by 1.54. इसको सॉल्व करेंगे 8 टाइम्स आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो v is 64 वोल्ट। समझ में आया? 43 तक। एनी अदर डाउट? ठीक है, अब ये हम बात करेंगे क्वांटम नंबर और ये वेव मैकेनिकल मॉडल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये लगभग काफी कुछ हमने कर लिया है, राइट। इन 43 कैन बी यूज लैम्डा इक्वल टू h by mv। तो वेलोसिटी कहाँ पता है आपको? पोटेंशियल थोड़ी ना m into v, मोमेंटम है ना। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन आपने पहले नहीं पूछा? 29th, अच्छा ये फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट 3 है ना, 2 pi r n इक्वल्स टू n लैम्डा। तो जो भी ऑर्बिट होगी उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे? सेम नंबर ऑफ वेव्स 3। 43 को वापस एक्सप्लेन करें तो भाई इसमें लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर लैम्डा इक्वल्स टू 12.3 रूट वी। रूट वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा आपको पता है, रूट वी निकाल लो, सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। तो सॉल्व इट। तो डन, यहाँ तक हमारा सारा डिस्कशन हो गया। बट आई हैव सेड इन द मीन टाइम यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उनको छोड़ दो, बट यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग एंड गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस आई थिंक, ठीक है। यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर लेट्स से, देन ट्राई, मतलब अभी मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद फिर से ट्राई करके देखो, राइट। It will give you a confidence that you can solve a question which you don't have, let's say, information or some new questions are there. So always try to solve 1 or 2 times. Asking, let's say, doubts over here, बहुत सारे हमने डाउट्स बता भी दिए, लेकिन याद नहीं रहता है। रिटेन कब होता है? सॉल्यूशन से रिटेन नहीं होता है, रिटेन होता है जब आपसे सॉल्यूशन होता है, आप उसको करो। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराए हैं, आपको खुद से फिर सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि बस सर ने बता दिया तो हो गया बस। सर सीरीज लिमिट मींस मैक्सिमम वेवलेंथ, तो बताओ कैसा हो सकता है? सीरीज लिमिट क्या होता है? कौन है ये भाई पूछ रहा है? हाथ उठाओ। आर्यन, हाँ, तो बताओ भाई सीरीज लिमिट क्या होता है? बोलो। तो मैं पूछ रहा था कि वो जो जेई एडवांस्ड वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, सीरीज लिमिट ऑफ पार्शियल सीरीज, उसमें सीरीज लिमिट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ना? क्यों होगा मैक्सिमम वेवलेंथ? पहले ये बताओ सीरीज लिमिट होता क्या है? व्हाट इज सीरीज लिमिट? मतलब लाइक कितना वेवलेंथ का उसमें कवर होता है? मुझे एन की वैल्यू बताओ कि कहाँ से कहाँ तक आएगा वो सीरीज लिमिट। तो पार्शियल वेवलेंथ n3 से तो मुझे बस इतना बताओ सीरीज लिमिट होता क्या है, बस दैट्स इट। क्या वो नेक्स्ट लाइन मतलब
जैसे लाइमन सीरीज के लिए 2 से 1 होता है, इनफाइनाइट से 1 होता है, तो सीरीज लिमिट क्या है? सीरीज लिमिट पार्शियल का होगा फिर इनफाइनाइट से 3। इनफाइनाइट से 3। तो पार्शियल सीरीज के लिए इनफाइनाइट से 3 वाली बात जो है वो मैक्सिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, बताओ? इनफाइनाइट से 3 में मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी होगी। अच्छा बताओ, 4 से 3 आएगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इससे? नहीं, तो इनफाइनाइट से 3 आएगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा मिनिमम होगा। पहली बात तो इतना समझ में आ गया लॉजिक। अगर आपको ये नहीं भी पता है, कंफ्यूजन है, तो क्या करना चाहिए? नोट्स बनाए हैं? यस सर। किस लिए बनाए हैं? किस लिए बनाए हैं बताओ? रिवीजन के लिए। तो वो कब होगा? जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम है और तुम्हें लग रहा है तुम फंस रहे हो, तो नोट्स देखना है ना। स्नैपशॉट लेके काम नहीं होगा, राइट? आई नो कि आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग बस स्नैपशॉट ही ले रहे हैं, लिखे नहीं उन्होंने। तो लिखोगे नहीं फिर ऐसे छोटे मोटे डाउट्स आते रहेंगे, राइट? यस जय बोलो। जय सिंह, एनी डाउट? Okay, let's see. So okay, that's it. What? Yes, Rishika, you can ask. क्या है डाउट आपका? जल्दी जल्दी पूछो, फिर अब आगे चलना है, राइट? इसी क्लास में बहुत कम टाइम रह गया। Okay, let's so leave it. Okay, then JEE Advanced 23. Yesterday also some girl is saying कि सर मुझे डाउट पूछना है। मैं पूछ लो क्या डाउट था, right? We will cover that. JEE Advanced 23. So the first use of quantum theory explain the structure of atom was made by. Okay, the first use of quantum theory. So quantum theory is not related with Planck's quantum over here. Quantum theory is Heisenberg is going to be the answer. Okay, Heisenberg. It's get equipped to JE. Angarika, we will discuss the whole, let's say, जब मैं पूरा एक बार दे दूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे, राइट? So JEE Advanced जब पूरा दे देंगे तब I will, but if you have any doubt then you can ask. So photoelectric emission is observed from a surface of frequency nu1 and nu2 of a incident radiation where nu1 is, है ना, ये v1 का मतलब nu1 है, ठीक है, frequency, right? nu1 is greater than nu2 if maximum kinetic energy in the force photoelectrons in these two cases r1 is to k, then the threshold frequency is given by. So simple है, बस आपको equation बनानी है, right? So what first is h nu1 is nothing but, let's say, work function which we are going to write phi plus kinetic energy. First, let's say kinetic energy 1, and h nu2 is nothing but phi plus kinetic energy 2. ठीक है? What they are asking is then the threshold frequency is given by. Okay, so what we need to do is we need to find threshold frequency which is h nu naught. Now what is the relation? We have been given that kinetic energy 1 and kinetic energy 2 is nothing but 1 by k. Just make sure that is okay, 1 is to k, right? Maximum kinetic energy. तो क्या कर सकते हैं हम, पहले ये निकाल लें, है ना, इसको इधर ले जाएं,
h nu1 minus nu naught divided by h nu2 minus nu naught. This is 1 by k. h कट हो गया, तो सॉल्व इट, इसको बस सॉल्व कर लो. k nu1 minus k nu naught is nothing but nu2 minus nu naught. क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा. So k nu1 minus nu2 is nothing but k nu naught minus nu naught. तो nu naught निकालना है तो k minus 1 आ जाएगा. k nu1 minus nu2 डिवाइड बाई, यहाँ nu naught कॉमन ले लो तो k minus 1. देखते हैं फॉर्म ठीक है. ओके 23 25 the same Sohani, the same part. पेज नंबर 55 14 क्वेश्चन and 24. पेज नंबर 55 पे we'll go to, let's say question number 24. The difference in nth and n plus 1 Bohr's radius of hydrogen is equals to its n minus 1. The value of n is, दो तरीके हैं. एक तो पहले ये है वैल्यू डाल के देख लो, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो n minus 1 0 होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना. जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू कैन चेक, और यू कैन राइट विद द एक्सप्रेशन. nth में कितना हो जाएगा, r नॉट n स्क्वायर बाई जेड, r नॉट n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई जेड, और n माइनस 1 में कितना हो जाएगा, r n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई जेड. एनीवे व्हाट दे आर सेइंग कि इसका डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस ले लो, r नॉट बाई जेड कॉमन ले लो, फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल लो, माइनस n स्क्वायर इज नथिंग बट r नॉट बाई जेड n माइनस 1 का होल स्क्वायर. कट कर दो, ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है ना, और माइनस n स्क्वायर तो 2n प्लस 1 विच इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. तो 1 से 1 कट गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल्स टू 4n, n इक्वल्स टू 4. दैट्स इट, आंसर. अंडरस्टैंड. Now the electron in hydrogen atom makes transition from m cell का मतलब क्या होता है, KLMN. तो 3 से 2, now you can solve. 3 से 2 आ रहा है, एक्सेलरेशन बताना है, a को a के बारे में बताना है, तो a can be related as f equals to k q1 q2 by r square. f is equals to m into a. Just put the value of r in terms of r naught n square by z, then you will be able to solve it. ठीक है, q1 और q2 भी लिख लेना, ze into e. Now let's move on to question number, page number 55. Question number 14. The one series of hydrogen spectrum can be represented by, so this is hc by lambda, or sorry, 1 by lambda is r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, right? So you can write c से मल्टीप्लाई कर दो तो ये r c z स्क्वायर हो जाएगा, ये c by lambda क्या हो जाएगा, न्यू बार लिखा हुआ है, sorry, you don't have to multiply. So 1 by lambda is nothing but न्यू बार, बस सॉल्व इट. ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने, जस्ट इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यू विल गेट द आंसर. So answer of 24 is given D. देखते हैं भाई कहाँ गया. तो डी तो आ रहा है, 4 आ रहा था ना. ठीक है, 46 and 10. ओके, तो आज की क्लास लगता है डिस्कशन ही हो जाएगी. ओके.
भाई 10th क्वेश्चन कौन से पे किसका बोल रहे हो आप? 10th इसी में यही में बोल रहे हो? यस। A sample of hydrogen is exposed to electromagnetic radiation, this which causes emission of induced radiation. Calculate the lambda. तो ये कह रहे हैं भाई ये 1028 का आपने डाला एंगस्ट्रॉम का फोटोन, तो ये ऊपर चला गया, राइट। एक्सपोज्ड का मतलब क्या है? उस पर गिर रहा है, राइट। एक्सपोज्ड है ना, उसके सामने आपने रखा, सो दिस इज द एनर्जी इज गोइंग टू फॉल। ये एनर्जी आएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है n = 1 से n = 3 में आ जाएगा। नाउ दे आर सेइंग व्हिच कॉजेस इमिशन। इमिशन मतलब क्या है? एक फोटोन निकल रहे हैं, राइट। सो दिस इज नाउ इट इज गोइंग टू कम टू द ग्राउंड स्टेट। तो कैसे होगा? 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, एक तो ये होगा और एक डायरेक्टली हो सकता है 3 से 1। ठीक है, तो ये 3। ठीक है, ओके देन दैट्स इट। अब ये ऐसे ही हम करेंगे तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चन दोबारा पूछ लोगे। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो पुराने देखो लेक्चर्स कि हमने क्या क्या पढ़ाया हुआ है, राइट। इट्स नॉट राइट, जब डिस्कशन बोला जाता है आप लोग करते नहीं हो। एक्सपर्टाइज अटेंडर अभी नहीं कर रहे हैं ऋषिका, ओके। गलत बात है ना ये, आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हो। सारे क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं या नहीं? पूछा था ना आपसे। चलो अभी मैं लास्ट डाउट्स ले रहा हूँ। ये पेज नंबर 55 14th का बी। So in what portion the electromagnetic radiation will be in this series? n आपको पता चल जाएगा, then can you not calculate? कि लाइमन होगा क्या होगा? ठीक है भाई, पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये 63 पे है क्वेश्चन नंबर 5। Which concerning Bohr's model are true? Predict that probability of electrons near the nucleus is more. Angular momentum of hydrogen atom is equals to nh/2 pi. Introduce the idea of stationary orbit and explain the spectrum of hydrogen. So right, there is a close call between B and C. Angular momentum वाली बात ही I think we are going to go with it, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है एनर्जी हो सकता है आइडिया पहले से भी आ रहा हो, और बोथ आर करेक्ट। अगर मल्टीपल तो नहीं है ये, हाँ मोर देन वन है, देन बी एंड सी। ठीक है, ओके आई एम नॉट टेकिंग एनी डाउट्स एनी मोर। ठीक है, अभी नहीं ले रहे हैं आप डाउट्स, क्योंकि आप लोग वहीं कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हो, अभी उतना नहीं है, राइट। जितना हमने बोला गया उसमें आपको क्वेश्चंस, राइट, जितना हमने बोला उसमें आपको ये सारे डिस्कशन के टाइम पे बोला गया, वो आप उस टाइम पे होमवर्क करो और पूछो। ठीक है, ऑलमोस्ट आई हैव सॉल्व एवरी क्वेश्चन, क्योंकि सब पूछ ही लेते हैं, एक आधी क्वेश्चन रह जाता है जो किसी ने नहीं पूछा हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बता दिया है। सो आई टोल्ड यू कि there is a uncertainty of measurement of, let's say, electrons position as well as momentum simultaneously. So that's why you can say then we are having a concept of probability, where is electron is going to be let's say present, right? Concept of electron probability is there. Now, so Schrodinger was a let's say one scientist who has tried to solve how we are going to he has mathematically derived how we are going to solve this इलेक्ट्रॉन वेव का जो फंक्शन है उसको बना के वी आर गोइंग टू सॉल्व इट।
So what he said is कि electron is going to be present in, let's say, inside the nucleus, inside the atom between nucleus and equals to infinite, means boundary. These are called as boundary conditions. Boundary, right? कि न्यूक्लियस पे नहीं है और वो इनफाइनाइट पे नहीं है, राइट? उसके बीच में है. तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, लेट्स से ओवर हियर, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ वेव. तो इलेक्ट्रॉन की वेव की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेव की इंटेंसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. देयर वी कैन से एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज गोइंग टू टेल यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन की वेव है, राइट, इलेक्ट्रॉन की वेव. अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंडिंग वेव सर्च किया था? स्टैंडिंग वेव सर्च किया, हाथ दो. आई हैव आस्क्ड कि यू हैव टू सर्च स्टैंडिंग वेव क्या होता है, राइट? दे हैव चेक्ड यूट्यूब. तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें दो बाउंड्री ऐसे कंस्ट्रेंट रखा होगा उन्होंने, और दे आर गोइंग टू गिव द फ्रीक्वेंसी. तो होता क्या है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है कि जब एक एंड से दूसरे एंड पे वह वेव जा रही है और वापस आ रही है ना? इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रेवलिंग वेव ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेवलिंग वेव ऐसे आ रही है, राइट? तो उसके कारण स्टैंडिंग वेव बनती है, राइट? सो बिटवीन टू रिजिड, लेट्स से rigid constrained, or let's say in constrained और बाउंडेड, लेट्स से पॉइंट पे अगर हम रखेंगे एक वायर को और फिर उसमें हम वेव प्रोड्यूस करेंगे, देन इट इज गोइंग टू गिव यू काइंड ऑफ स्टैंडिंग वेव. ठीक है, और उसमें हो क्या रहा है, एक ट्रेवलिंग वेव इधर जा रही है, दूसरी ट्रेवलिंग वेव इधर जा रही है, इसके कारण वो स्टैंडिंग वेव बन रही है. एनीवे, स्टैंडिंग वेव, और यू कैन से स्टेशनरी वेव टाइप ऑफ. ओके, सो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, राइट, इलेक्ट्रॉन की वेव की इंटेंसिटी जहां पे मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड जहां पे मैक्सिमम होगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स. दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड. और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एम्पलीट्यूड जीरो होगा, राइट, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, जीरो. दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स. वी हैव सीन व्हाट इज एंटी नोड, वी हैव सीन व्हाट इज नोड. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर. So Schrodinger, let's say, imagine कि अभी तक हम ये कर रहे थे कि there is two or three things I should tell you first. Let's say wave function of electron is represented by psi, है ना? ये त्रिशूल टाइप बना हुआ है, राइट? ठीक है, this is psi over here. Now, psi is है ना 3-dimension wave, है ना? So psi is a function of x, y, z, t टाइम. अभी तक हमने 1 डायमेंशन वेव पढ़ी थी, है ना? दिस इज इन 3 डायमेंशन. दैट्स इट. psi is going to be function of x, t. That is going to be in 1 dimension. ठीक है, 3 डायमेंशन होगा तो x, y, z हो जाएगा. 1 dimension. So for the simplicity we are going to focus on 1 dimension, right? And we will say कि जो x डायरेक्शन में हो रहा होगा वही सेम काम y डायरेक्शन में हो रहा होगा, वही काम z डायरेक्शन में हो रहा होगा. ठीक है, right? So then we are going to combine all three, then we can form 3-dimension wave, है ना? समझ में आ रहा है ये बात? x डायमेंशन में तो जैसे रस्सी है ना? तो रस्सी में जो आप let's say in line whatever the moment of energy हो रही है, that is 1 dimension wave. मान लो एक प्लेन हो गया x y में, राइट? फिर ऐसे कुछ जो मूव कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, राइट? एंड साइमल्टेनियसली ऑल 3 प्लेन्स में एक साथ हो रहा है कुछ, राइट? इफ द मोमेंट ऑफ एनर्जी इज लेट्स से मूविंग, राइट? तो व्हाट विल हैपन, दैट इज गोइंग टू बी 3-dimension वेव. कैन यू इमेजिन दिस पॉइंट? ठीक है, तो जो काम हम एक डायरेक्शन में बोल रहे हैं वैसे हम बोलेंगे कि सारे डायरेक्शन में होने लग जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी 3-dimension वेव, राइट? ठीक है,
तो psi is a 3-dimension wave and that is going to be function of x comma y comma z and t, और 1 dimension के लिए that is x comma t, right? Now there is another thing is probability density. Probability density, right, is proportional to psi square. है ना? Probability density is going to be proportional to, probability density is nothing but where you can find the electron, right? So probability density किसके बराबर, किसके proportional होगा? psi square. Psi square का मतलब क्या हुआ, है ना? You can say in note or you can say in bracket as probability of finding electron is maximum where intensity of electron wave is maximum and intensity is proportional to amplitude square. ठीक है? Anyway, okay, resumes here. Okay, yes, फिर से probability density is proportional to psi square as the probability of finding electron is maximum where intensity of electron wave is maximum. ठीक है? जहाँ पे intensity ज्यादा होगी वहाँ पे probability of finding electron ज्यादा होगा, and the intensity is proportional to amplitude square. So that's why we are writing psi square. ठीक है? There is another thing is called probability, net probability or total probability. Probability of finding electron is nothing but equals to probability density into volume. So probability of finding electron in a space, let's say, is nothing but probability density into volume. क्या है थोड़ा समझते हैं, right? तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि right, probability density is just telling you कि इस particular let's say per unit area, per unit volume में कितनी, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी ज्यादा है. If we have to find the overall probability, what we have to do? We have to multiply it by the volume, है ना? जैसे mass equals to क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम. तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट? So Schrodinger used these, let's say, method. He has made let's say one equation, right? So the equation was, let's say, if we are going to write for a standing wave, for one dimension standing wave, let's say psi is nothing but a sine, psi is a function of x and t, which is nothing but a sine kx cos omega t, right? ये लिखा हुआ है. For one dimension standing wave can be write like this. Now for standing wave we can, let's say, write time independent, है ना? Time dependent and time independent two Schrodinger equation we can make. So मैं अभी ये time अलग अलग time के हिसाब से vary नहीं करा रहा हूँ, right? So time dependent, which we are not going to study,
टाइम इंडिपेंडेंट लेट्स से ले लेते हैं. टाइम इंडिपेंडेंट मींस t इक्वल्स टू 0, राइट. हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, psi इज गोइंग टू बी फॉर टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम डिपेंडेंट को हम अलग एक हैमिल्टनियन वेक्टर होता है उससे सॉल्व करते हैं. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. हम इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा आसान है सॉल्व करना. सो फॉर टाइम इंडिपेंडेंट, दो दिस प्रूफ इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस, राइट. ये भी प्रूफ आपके में नहीं है, लेकिन मैं प्रूव कर रहा हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस बिकॉज इट इज लिटिल बिट इजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो फॉर टाइम इंडिपेंडेंट कैन आई राइट t इक्वल्स टू 0, है ना. तो cos omega t is nothing but cos 0 and that is 1, right. So psi is going to be, now psi is nothing but a sin kx. ठीक है. now what we are going to write, d psi by dx क्या हो जाएगा, sin का क्या होता है cos, है ना. sin theta is cos theta, तो this is going to be k into a cos kx. ठीक है ना. इसको पहले kx को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो k dx इज नथिंग बट डी थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा को करेंगे, इसलिए ये k जो है ना वो आगे आ जाएगा बाहर. नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम. तो डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो है माइनस साइन थीटा. अगर आपने ये डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आगे पढ़ोगे. साइन का क्या होता है cos थीटा और cos का होता है माइनस साइन थीटा. सो दिस गोइंग टू बी माइनस k स्क्वायर a sin kx. So what we can write is a sin kx is nothing but psi x. So d square psi by dx square equals to minus k square psi x, right. This is, let's say, equation 1. Now what is k? K is nothing but 2 pi by lambda. ठीक है. तो k square is nothing but 4 pi square by lambda square, and lambda is nothing but h by p. So we are going to write lambda square, k square is nothing but 4 pi square lambda square h square into p square. ठीक है. ये p ऊपर चला गया, सॉरी lambda हटाना है. So this is going to be h square into p square. ये मिल गया. Now since we know p square by 2m, you know, and since p square by 2m is nothing but kinetic energy, and this kinetic energy is nothing but total energy minus potential energy. Minus potential energy. So we can write hence p square is nothing but, है ना, this 2m is going to go over here. इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं. So 2m kinetic energy, और you can say 2m into total energy को यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और potential energy को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So can I write p square is nothing but like this. ठीक है. Now let's put p square की वैल्यू over here. तो k square is nothing but 4 pi square into 2m divided by h square e minus v. ठीक है. So this is nothing but 8 pi square m by h square e minus v. Now we are going to put the same value कहाँ पे, यहाँ पे put कर देंगे. So this is hence from equation number 1, p square psi by dx square equals to minus k square. So this is 8 pi square m by h square e minus v, or we can say, or
d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square e minus v equals to 0. This is Schrodinger wave equation for in one dimension. ये प्रूफ है ना, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस इक्वेशन का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको मैंने आपको बता दिया था कि भाई स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है, और फिर आई हैव टोल्ड यू कि टाइम इंडिपेंडेंट के लिए थोड़ा आसान रहेगा प्रूव करना. सो आई हैव प्रूव दिस इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट लेट्स से फंक्शन, ठीक है, t0 मान के. So that is in one dimension, Schrodinger equation in one dimension. If we have to write 3 dimension, तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, d square psi by dy square सेम आएगा. So for 3 dimension क्या होता है, this is the d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dz square plus 8 pi square m by h square e minus v equals to 0. Where E is total energy, V is potential energy, psi is wave function of electron wave, and okay, this is in 3 dimension. So you have to remember this. Sometime what they are use is what they do is in other options to change this, है ना, ये h square को इधर ले गए let's say, so इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है let's say another somebody has written, इसके ही other forms है अलग अलग, तो ये भी हो सकता है h square by 8 pi square m ब्रैकेट में ले लिया d square psi by dx square. पूछा गया है IIT में ये क्वेश्चन 2-3 बार अलग अलग तरीके से. इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, राइट, ओवर हियर प्लस ई, है ना, प्लस ई इक्वल्स टू वी, ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है ना, एंड एनी लेट्स से फॉर्म कैन हैपन लाइक दिस. इसको थोड़ा वेरी कर सकते हैं, तो अलग अलग तरह से ये इक्वेशन दे रखी होती है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. चलो यहाँ पे मैं दोनों एक साथ ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है. मैं इसको इधर ले गया, मतलब मैंने h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही रहेगा और ये कट जाएगा. हाँ सॉरी, मैंने ओहो आई हैव नॉट रिटन साई एक्स, यहाँ सब जगह साई एक्स और आना है, ठीक है, आई हैव नॉट रिटन साई एक्स, यस, ठीक है. व्हेन आई एम गोइंग टू राइट दिस इज साई एक्स और इज आल्सो गोइंग टू कम के स्क्वायर के साथ साई एक्स और है, राइट, सो साई एक्स. यस पल्लव. सर वेव फंक्शन का और टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम वेव में विद टाइम हम चेंज नहीं कर रहे, राइट, वी आर जस्ट चेकिंग द वेव विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस में हम चेक कर रहे हैं. जैसे हमने वो वन डायमेंशन में लाइन देखी थी ना, तो आई हैव टोल्ड यू कि दैट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज डिस्टेंस, है ना. अगर मान लो कंटिन्यूअस वेव ऐसे जा रही है, राइट, तो उसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग होगा और टाइम के हिसाब से भी अलग अलग होगा, यस सर, है ना. एक टाइम पे मान लो ऐसे जा रही थी, मान लो ये t इक्वल टू 0 पे था, फिर इसी पॉइंट पे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, राइट, है ना. ये मान लो t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू t पे हो गया. सो एट ए डिफरेंट लेट्स से टाइम द वेव्स एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू x. तो मैं टाइम पे डिपेंडेंसी हटा दे रहा हूँ, राइट. आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट कि भाई x के हिसाब से क्या होगा, है ना. तो t इक्वल टू 0 इसके लिए जो बात वैलिड होगी वो भी इसी के लिए भी बात वैलिड होगी t इक्वल टू t पे, यस सर, है ना. इसलिए मैंने केवल इस पे लिखा, ये सिंपल केस है rather than this one. और प्रूफ सर जो करना वेव आसान है. फंक्शन है उसका मतलब क्या है, लाइक एग्जैक्टली? वेव फंक्शन का मतलब ये है कि द वेव व्हिच इज गोइंग टू बी लेट्स से इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेव नेचर आ रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट,
so you are representing by psi. और अगर वो साइन वेव की तरह मूव कर रहा है, then what is going to be the function, कि उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे इक्वेशन को, है ना? तो that is going to be a sin kx, let's say cos omega t. हाँ, सर आप एक बार मिनिमाइज कर दोगे वो लिखना। एक बार फिर से सर मिनिमाइज कर दोगे उसका हाँ डेरिवेशन हाँ लिखना। मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ. So this is the proof of Schrodinger wave equation. We will understand a little bit more about it. Basically we are going to understand the application of Schrodinger equation. Not the proof is not very much required, but yes you can learn it, है ना? एक्स्ट्रा मतलब जनरली बताते नहीं है, कई जगह तो बताते नहीं है इसके प्रूफ को, राइट? क्योंकि एट योर लेवल 11th में आपको बहुत कुछ नहीं पता है, अभी आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, राइट? वेव नेचर नहीं पता है, तो इतना प्रूफ बता के फायदा नहीं है, राइट? बट आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, जस्ट लर्न द इक्वेशन. ओके सर वो टाइम इंडिपेंडेंट से जहाँ पे आपने स्टार्ट किया ना, फिर थोड़ा तेज बोलो. सर जो टाइम इंडिपेंडेंट के वहां से आपने स्टार्ट किया ना डेरिवेशन, थोड़ा स्टार्टिंग से. ओके देन आई हैव टू ऐसे समझ में आएगा. हाँ सर आ जाएगा. एक मिनट. Okay, in the meanwhile, if you have any doubt, so we have to remember only one equation, right? You can make another one, ठीक है, उसके हिसाब से. And whoever is having any doubt, they can stay, other can leave. So it's a very good question, Ritisha. What you can do is you can start it to make a summary, है ना? आप लोग क्या करो, एक समरी बनाने लग जाओ. तो starting to make the summary के important फॉर्मूले क्या है एक साथ लिख लो. It is going to help you a lot. See what will happen कि मान लो इस बार हमें टाइम मिल गया तो हमने हो सकता है कि क्लास रख ली और आपको समझा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फॉर्मूला रिवाइज नहीं होंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा कई बार, राइट? वैसे इस बार भी थोड़ा सा हमारा थोड़ा टाइट ही रहने वाला है. एक ही वीक तो रह गया, अभी 8 दिन रह गए, 4 क्लासेस. आई डोंट नो कितना हम कर पाएंगे. मेक द समरी. सर हाँ सर आपने जो राइट पेज पे जो d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर किया, वो स्टेप क्या किया, वो समझा नहीं ये सर. हाँ ये वाला स्टेप. ये ना ये डिफरेंशिएशन लिया है, इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन लिया है. अच्छा अगेन है ना? ये ऐसे लिखा हुआ है. सर इज इट ओके अगर हम लोग एक अरे रुको भाई रुको. हेलो So this is nothing but it is written as d by dx or d psi by dx. So that is double differentiation. हाँ बोलो भाई राजदीप, सर इज इट ओके कि हम लोग थोड़ा तेज बोलो. हेलो सर इज इट ओके कि अगर हम लोग सारे एक बुक में एक वो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखकर उसे बाय हार्ट करें, आई मीन इज दैट? हाँ अलग बुक बना लो, ठीक है, एक समरी बुक बना लो, क्या है. क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो है फॉर्मूलाज उनको तो अदर देन आई मीन समझो या फिर यू हैव टू मेमोराइज इट. फिर मेमोराइजिंग आई विल ट्राई. ठीक है. सर इट इज ओके नो? हाँ इट इज ओके. आई मीन समझ में मेरे आ गए सब, सिर्फ वो कभी ओके. एक मिनट. That's it. Okay. Yes बोलो. सर ये फॉर्मूलास क्वेश्चंस कैसे यूज होंगे? ये फॉर्मूला अभी इसमें क्या यूज होना है वो मैं आगे बताऊंगा, इसमें क्या यूज होना है. बट sometimes they just ask what is the Schrodinger wave equation. So how they are going to change is they will write plus or minus sign somewhere, or they will change इक्वेशन को अलग छोड़ा.
चेंज कर देंगे बस हाँ बस ऐसे। बस अच्छा okay, that's it. Then I'm just ending this meeting because I have another class. Okay, सर 2 मिनट हुआ सर, ठीक है, लिख रहा ये यहाँ पे इतना हो रहा है, ये लिख लो नेक्स्ट। सर। हाँ सर आपने वो जो पी स्क्वायर का वो किया एक बार दिखाओगे? थोड़ा तेज बोलोगे? सर जो पी स्क्वायर का आपने वो पुट किया ना वैल्यू हाँ ऊपर, सर वो मेरे को वो देखना था। दिखाना है, राइट? हाँ सर, थोड़ा सा बचा बस। यस आकाश बोलो। सर तो अभी जो आपने एक डिराइव किया और दूसरा जो आपने बाद में 3D वाला बोला, उसमें से हमें 3D वाला ही अभी मतलब अभी के लिए याद रखना है ना? हाँ आप नहीं, इसमें कुछ है नहीं, देखो अगर आप ये ध्यान से देखोगे डी स्क्वायर एक्स साई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन तो सेम है, बस यहाँ पे अगर हमने साई एक्स लिखा है, ओके देन वी कैन राइट, एक चीज मैंने मिस कर दी है यहाँ पे, राइट? So if we are writing it for 3 dimension, then we are going to write psi x y z equals to 0, 3 dimension में आएगी ये, है ना? और यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा psi x y z 3 dimension में, है ना? तो it is going to be for 3 dimension, if we are going to write, तो psi जो है वो फंक्शन होगा 3 dimension का, और 1 dimension होगा तो psi x ही लिख देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बाय बाय बाय।